Hello students, today I will teach you the second chapter of geography, land and soil resources of class 8. Chapter number 2 of geography, land and soil resources, class 8. Okay, so let's start the video today. Students, let's take the first heading, and that is land resources. Students, when we consider land as an important resources, so it is called land resources. Okay, whatever given us by nature, like water, like land, like soil. Okay, so all they are resources. So when we treat land, bhumi, jameen, land as an important resources, so that is called land resources. You know students, humans live on land and fulfill most of their needs and essentiality by the products obtained from land. It provides almost 95% of our requirement for food, clothing and shelter. Okay. However, only 30% of the total surface area of the earth is covered by land. Only 30% हिस्सा आपका land है, बाकी आपका क्या है, water ही water है. Okay. Making its availability for human use very limited. Okay, it is in a very limited amount for the human beings. Like water, it is not unlimited. Even this small amount is not totally suitable for human habitation. Okay, because lands have many forms, just like plateau, mountains, plain land, Indo-Gangetic plain. Okay, island. So there are many forms of land, many types of land. Okay, different types of soil and different types of land. So all kinds of land are not suitable for living. Okay, they are not having all the living condition. सभी प्रकार की जमीन, सभी प्रकार का भूमि रहने योग्य नहीं है. Okay, because to live in the plain land is far better than to live in an island. Okay, or to live at mountain, to live at plateau. Okay, to live in the forest. So there is very much big difference between living in all kinds of land forms. About 90% of the world's population lives only 30% of its land area. Okay, since land is only 1/3 of the universe, so in the 1/3 of the universe, 90% of the world population lives in the same area. The land is either very thinly populated or uninhabited. This is due to the harsh climate conditions or relief features in the areas present. Okay, the utility of the land depends on the climatic condition. If the climatic condition is too harsh, okay, too much heat is there, so no one would like to live there. If in a climatic condition there is too much cold, temperature is decreasing to -20, -30%, so then also no one would like to live in that same place. That's like in the polar region, South Pole, North Pole. Okay, many few people would like to live there. Just take the example of Antarctica. In Antarctica, only 1% or 0.5% human beings are living there. The scientists, the researchers, they would like to make their camp over there. Normal human beings, fertility was not there. Okay, in that thing. Now, how we can use the land? The term land use denotes at different uses that land is put to, such as cultivation of crops. We would like to use the land for cultivation of crops, फसल बोने के लिए, for grazing of animals, जानवरों को चरने के लिए, जानवर घास वगैरह चरते हैं. Mining, we also use the land for mining purpose. For mining, we will get many kind of minerals like gold, like silver, like mica, like manganese, like iron ore. Okay, we get so much. We get ample amount of plenty of minerals from inside the crust of the earth. Okay, we also use land for constructing roads. Okay, for making houses, for making buildings, and for setting up big and more industries and plantations. For making factories, for making plants. Okay, for making many things, we would like to use the lands. We also use lands for our inhabitant purpose. हम अपने रहने के लिए भी इस लैंड या ज़मीन का यूज़ करते हैं. ओके,
नाउ कम्स टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैंड यूज। वो ऐसे कौन से रीज़न है, कौन से कारण हैं जो लैंड को जो कि अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आइए उसको देखते हैं। इन फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज there are two more important and two main important factors. The first is physical factors. Okay, what is physical factors? The physical factors of a region such as relief features. Okay, what is the features? Soil, okay, soil, climate, natural vegetation, and availability of water. Okay, why soil is very important? Okay, because different type of soil creates different type of land. Okay, just suppose land is so perfect and anybody would want to live on the land, but the soil condition is not good. If the soil is not fertile, so crop production is not possible. खेती हो नहीं पाएगी. Okay, so this type of land which doesn't have a fertile soil is not able to live. Second is climate. Climate also have very important role in the making of soil and land also. You just suppose land is perfect, land is able to use, okay, and the climatic condition of not good of that area, so a normal human being cannot live in such conditions also. Climate should be moderate, climate should be medium to live that. Now third is natural vegetation. Natural vegetation here means by flora and fauna. It means plants and animals. Okay, if the land is if any kind of land is there and there is no tree, no plants is there, no forest is there, okay, so then also these kind of lands are not able to live in that area, because in the absence of natural vegetation, in the absence of plants and forest and trees, there will be no rain, because plant and trees plays a very much important role in making rain, okay, or happening rain. And the last is availability of water. Okay, just suppose if the piece of land is there, you want to live on that, but there is no availability of water under the earth or under the land. अगर वो ज़मीन के नीचे पानी ही नहीं है, then also living conditions is not possible. How can one live without water? Okay, so these are the four important facts. Now next heading is conservation of land. Okay, how can we conserve our lands? Now, since land is very important, okay, land we can utilize land in a very great deal. So its use should be planned and properly. The nature of land and needs of local people have to be taken into account while preparing the lands and use plans. Okay, so we can save our land, we can make perfect, we can conserve our land by some points. Okay, the point number one is afforestation. Okay, the point number one is afforestation. Okay, so what do you mean by afforestation? Afforestation means planting more and more trees. Okay, planting more and more trees for making the environment good. अधिक से अधिक हम जब ट्री प्लांट करते हैं, पेड़ लगाते हैं, उसको अफोरेस्टेशन कहते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट. ठीक है, शेल्टर बेल्ट को अप्लाई करके हम अपने लैंड को कंजर्व कर सकते हैं. शेल्टर बेल्ट से यहाँ पे मतलब ये हुआ कि हमको अपने लैंड को शेल्टर करना है. कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन. ठीक है, डिफरेंट तरीके से जो सॉइल इरोजन होता है, जो मिट्टी कट करके बह जाती है, उसको हम लोग को स्टॉप करना पड़ेगा. चेक ऑन ओवर ग्रीजिंग. ठीक है, चेक ऑन ओवर ग्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि ज़मीन को जानवर बहुत अधिक वहाँ उसकी घास को चरने ना पाएँ. जब वो घास को चर जाएंगे तो घास जो ऊपर से उखड़ जाएगी, तो फिर वो मिट्टी ढीली हो जाती है और वो मिट्टी आसानी से पानी द्वारा, वाटर द्वारा बहाई जा सकती है. वो मिट्टी लूज़ हो जाती है, मिट्टी की टाइटनेस नहीं रह जाती. उसके बाद से साइंटिफिक मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है, नई साइंटिफिक मेथड्स हम निकालें एग्रीकल्चर की, जो बिना इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाए, बिना इन्वायरमेंट को बिगाड़े, हम अच्छे से अच्छी टेक्निक से एग्रीकल्चर कर सकें और बाकी चीज़ें कर सकें. उसके बाद से कंट्रोल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. हमें केमिकल से जो बनते हैं फर्टिलाइजर्स, ठीक है, उनको नहीं डालना है. पेस्टिसाइड्स यानी जो कीड़े मारने की दवा होती है, हमको ये सब केमिकली नहीं प्रयोग करना है, हमको बायोलॉजिकल प्रयोग करना है और ऑर्गेनिक प्रयोग करना है. ठीक है,
क्योंकि ये जब केमिकल से बने हुए फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हम जब यूज़ करते हैं वो हमारे अर्थ में जाते हैं, हमारे सॉइल को पोल्यूट करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को डिग्रेड करते हैं। उससे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है और पॉइजनस एलिमेंट भी सॉइल में आ जाते हैं, जो कि क्रॉप के लिए, फसलों के लिए एक सूटेबल कंडीशन नहीं होती है और क्रॉप्स अच्छी नहीं हो पाती उसमें। उसके बाद से कंट्रोल ऑन वेस्टफुल माइनिंग, ठीक है, हम तमाम प्रकार के मिनरल्स निकालने के लिए हम लैंड को, अर्थ को खोदते रहते हैं, माइन कर लेते हैं। तो हमें ये भी हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि माइनिंग करते समय जो धूल वगैरह उड़ती है, ठीक है, तो ये फिर वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है और उससे नुकसान हमारा बहुत ज़्यादा होता है। नाउ द नेक्स्ट स्टडी इज सॉइल प्रोफाइल। ओके, सॉइल प्रोफाइल मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोफाइल, structure of soil and profile of soil. Okay, soil contains many layer, soil contains many part. Okay, soil contains 4 layer. So the uppermost layer, the topmost layer is called topsoil. Okay, topsoil are made with fine particles of rock such as clay, silt, sand, and form of upper layer of the soil is called topsoil. This layer also contains humus. So students, what is humus? So let's understand what is humus. Humus is the dead remains of plants and animals which provides organic matter. Okay, soil में जो जानवरों और प्लांट्स का जो डेड रिमेन्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं को ह्यूमस कहा जाता है। और ह्यूमस आपको ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड कराते हैं, मिनरल्स, ठीक है, इसेंशियल क्वालिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, जिससे सॉइल बहुत ही फर्टाइल होती है। सॉइल की फर्टिलिटी का मेन रीज़न आपका ह्यूमस ही होता है। सो टॉप सॉइल कंटेन्स ह्यूमस, ओके, एंड रूट ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इनटू दिस पर्टिकुलर लेयर। पौधों की जो जड़ें होती हैं वो इस लेयर में पाई जाती हैं। द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड सबसॉइल। बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड सबसॉइल। रेन वाटर कलेक्ट्स इन दिस लेयर। प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर इज फाउंड इनटू दिस पर्टिकुलर लेयर। इट इज मेड अप ऑफ weathered rock, silt, clay, and some nutrients such as soluble minerals and iron oxide. So subsoil also is a very much important soil for the production of crops and for the production of plants. Okay, because plant gets their 90% of minerals from this layer only. Subsoil contains minerals. Subsoil contains minerals, nitrogen, air in the molecules of soil, and many more things contained by subsoil. Okay, now the third is substratum. So the third layer is substratum, and this layer lies between the subsoil and the parental bedrock. Okay, soil में सबसे नीचे जो हार्ड या डिफ़िकल्ट जो चट्टानें होती हैं, जो स्टोन्स होते हैं, उनको बेडरॉक कहते हैं। तो सबसॉइल और बेडरॉक के बीच में जो एरिया होता है, जो लेयर होता है, that is only called substratum. Okay, this layer lies in between the subsoil and the parental bedrock. It consists of weathered rock, और ये भी weathered rock से बनी हुई होती हैं। Now the final layer is called, the final and last layer is bedrock. The last layer at the bottom of the soil is the parent bedrock. It is a solid layer of unweathered rock. ये ऐसा आपका सॉलिड लेयर होता है जो अनवेदर्ड रॉक से बना होता है। अनवेदर्ड रॉक का मतलब ये रॉक जो कभी भी डिटेरियोरेट नहीं होती हैं, कभी भी ये टूटती नहीं है, कभी भी इनका अपरदन नहीं होता है, ठीक है। ये फाइन पार्टिकल में या मिनिमम पार्टिकल में ये कभी डिज़ोल्व नहीं होती हैं, ये वैसे की वैसे सॉलिड बनी हुई होती हैं। सो दीज आर टॉप फॉर सॉइल, दीज आर सॉइल structure and soil profile of the clay and soil. Okay, now proceeding toward the next heading, and the next heading is soil formation. Soil formation में सबसे पहले आपका है parent rock, ठीक है। जो आपकी सॉलिड चट्टानें होती हैं, सॉलिड जो रॉक्स होती हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे कभी कभी क्या होता है कि उनमें धीरे धीरे वो टूटने लगती हैं। तो जब वो ब्रेक होती हैं तो टीनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके गिरते हैं और उड़ करके यहाँ से वहाँ हवा में जाते हैं, और धीरे धीरे वो जब इकट्ठा होते हैं, ठीक है, जब उनका पाइलिंग होता है तो धीरे धीरे वो सॉइल का फॉर्मेशन वहाँ से होता है।
सेकंड आपका क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन और प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है कि रेन होना, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब होता है कि अगर बहुत ज़्यादा हीट उस एरिया में है, तो जब बहुत ज़्यादा हीट होती है तो जो भी आपकी रॉक्स होती हैं, बहुत से टाइप की रॉक्स होती हैं, वो रॉक्स पे जब हीट पड़ती है तो वो गर्म हो जाती हैं, वो हीट हो जाती हैं। उसके बाद जब बारिश होती है तो धीरे धीरे वो रॉक्स क्या होती हैं, धीरे धीरे उनका डिटेरियोरेशन होता है, यानी वो टूट के गिरने लगती हैं। वो करते करते धीरे धीरे उनमें से वो छूटते रहते हैं। आपके जो सैंडस्टोन होते हैं उनका इसी से आपका कंस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद से आपका आता है टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई स्लोप वाला लैंड है, कोई ऐसा जो है कि फॉर्म्स ऑफ लैंड है जो बहुत ज़्यादा हाइट पे है, तो हाइट होने के नाते फिर जब उस पर बारिश की बूंदें पड़ती हैं, ठीक है, या तेज़ हवाएं चलती हैं, तो धीरे धीरे ऊपर की मिट्टी जो है कि सॉइल होते होते फिर वो कट के नीचे गिरती रहती है और टीनी पार्टिकल के रूप में नीचे वो जाती रहती है, ठीक है। तो ऊंचा जो स्लोप आपका होता है वो थोड़ा थोड़ा एवरेज में हो जाता है और सॉइल जो है कि उससे एक्यूमुलेटेड आसानी से हो जाती है। उसके बाद ह्यूमस, ठीक है, प्लांट्स का या ह्यूमन बींग्स का या एनिमल्स का जो डेड होते हैं, ठीक है, जो डेड उनके रिमेन्स होते हैं, ठीक है, जो सड़े गले अवशेष जो रिमेन्स बचे होते हैं, ठीक है, वे भी आपके सॉइल के पार्टिकल के साथ मिक्स होके और एक प्रकार की सॉइल बना लेते हैं, या उसमें ह्यूमस की क्वालिटी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद से आपका है एजेंट ऑफ इरोजन्स। बहुत सारे एजेंट होते हैं। एजेंट का मतलब होता है मीडियम। बहुत सारे एजेंट होते हैं आपके, जैसे वाटर होता है, विंड होता है। विंड, कुछ इलाके ऐसे होते हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे विंड बहुत तेज़ी से ब्लो होती है, जैसे कोस्ट लाइन का इलाका, ठीक है, अरेबियन सी के साइड का जो इलाका हुआ, इंडियन ओशियन के साइड का जो इलाका हुआ, या आपका फिर बे ऑफ बंगाल के साइड का जो इलाका हुआ, ठीक है, जो कोस्ट लाइन के आसपास पड़ते हैं, वहाँ चूँकि वो सी है, ओशियन है, तो वहाँ से हवाएं चलती रहती हैं, विंड ब्लो होती रहती है। तो जो उधर के आपके प्लेट्यू बहुत ज़्यादा हैं, तो जब ऊंचे पहाड़ों पे या ऊंची ज़मीन पे प्लेट्यू पे, ठीक है, या हिली एरियाज़ में जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो धीरे धीरे वो हवाएं वाकई में तेज़ होती हैं, फास्ट होती हैं, तो धीरे धीरे वो ऊपरी जो लेयर होती है सॉइल की या माउंटेन्स की, लगभग उसमें आपके चट्टानी होते हैं, रॉक्स ही होते हैं, लेकिन जो कम मजबूत रॉक्स होते हैं उनको धीरे धीरे वो वहाँ से कट करके या उड़ा करके ले जाती है। फिर वो वहाँ से उनका इरोजन होता है। इरोजन होकर के वो टीनी पार्टिकल्स या फाइन पार्टिकल्स दूसरे जगह ले जाए जाते हैं। बारिश होती है, बारिश के पानी के साथ साथ वो बह करके दूसरे जगह जाते हैं, वहाँ उस सॉइल में मिल जा करके एक अलग प्रकार की सॉइल वो बना देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से आपका हेडिंग है टाइप्स ऑफ सॉइल। So the next heading is types of soil, ठीक है। The first type of soil is red soil, okay. Now what is red soil? Red soil is made by weathering and by deteriorating of igneous rock, okay. Since its color is red, so it is called red soil, okay. In red soil, high amount of iron is found, okay, but it cannot hold much moisture. ये पानी बहुत ज़्यादा नहीं सोख पाते हैं, ओके। सो इट डज नॉट एड और इट डज नॉट होल्ड टू मच अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ओके। इट इज़ फाउंड इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ओके। एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स लाइक ऑयल सीड एंड मिलेट्स, ओके, ऑयल सीड एंड मिलेट्स. For that production, this soil is very much important. The second type of soil is black soil. Black soil is also known as Regur soil. Okay, it is made by weathering of volcanic rocks. Volcanic rocks के टूटने से ये बनती हैं. Okay, and it is having basalt, clay. Okay, and it holds much more moistures. Okay, it is found in Deccan Plateau, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra. Okay, and it is best for the production of cotton and sugar cane. शुगर केन और कॉटन की प्रोडक्शन के लिए ये आपकी सॉइल सबसे बेस्ट सॉइल होती है. ये वॉल्केनिक रॉक्स के वेदरिंग करने से ये बनती है. एंड इट इज़ फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू, गुजरात, MP एंड महाराष्ट्र.
The next soil is laterite soil. Okay, laterite soil is made by leaching process that removes humus. जब humus हट जाता है soil से, ठीक है, तो laterite soil हो जाती है. It is not fertile as organic part is removed. जब humus हट जाता है तो फिर वो उतनी ऑर्गेनिक नहीं रह जाती, उतनी फर्टाइल, उतनी क्वालिटी उसमें नहीं रह जाती. It is found in eastern and western Ghats and northeast India. Okay, and it is for pasture and shrubs. ठीक है, ये सॉइल बहुत ज़्यादा यूटिलिटी तो नहीं रहती है, तो ये श्रब्स यानी छोटे मोटे झाड़ी उगने के लिए और पास्चर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रह जाती है. द नेक्स्ट इज alluvial soil. ओके, alluvial soil is made by deposition of sand and silt. जब सैंड और सिल्ट का जब डिपोजिशन होता है यानी उनका जब इकट्ठा होते हैं वो, सो दैट इज मेड alluvial soil. ओके, द सॉइल इज सैंड, सिल्ट एंड क्ले एंड वेरी फर्टाइल. इसमें सैंड होती है, सिल्ट भी होता है, क्ले भी होती है और ये बहुत फर्टाइल भी होते हैं. ओके, and it is found in northern plains and deltas in South India. Okay, in northern plain means in the state of UP, Bihar, Punjab, Bengal. Okay, and in South India also this type of soil is found. Okay, and it is very much helpful and it is very much fertile and it is very much useful for the crop production like wheat, rice, maize, pulse, sugarcane. ठीक है, गेहूँ, चावल, मक्का, दाल और शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए इट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट. देयर आर टू अदर टाइप्स ऑफ सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया. सो द फर्स्ट वन इज डेजर्ट सॉइल. ओके, डेजर्ट सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन राजस्थान. ओके, इन द डेजर्ट एरिया and it is very coarse, sandy, saline and not fertile. It is totally not fertile for production of any kind of crops. Okay, it is found in Rajasthan, Gujarat and Ladakh area. Okay, and it is only fit for the production of bajra and jowar. Okay, let me circle it one more time. Okay, that is the area of a desert soil. Last type of soil is mountain soil. Since its name is mountain soil, it is obviously found in the mountains. So it is made by the decomposition of organic matters. Okay, at the mountains they are fertile and rich in humus. High amount of humus is found in the soil. It is mainly found in Himalayan region and northeast region. Okay, and it is very much important for the production of fruit, tea, coffee and spices. Okay, spices, masale, fruits, tea and coffee. Okay students, so the next heading is soil erosion. Okay, what is soil erosion? Soil erosion refers to the removal of the topsoil by running water and wind. It causes the maximum loss to the soil fertility. This is also so because all the minerals, nutrients and are present in the topsoil. Soil can be eroded in many ways. The two most common ways are sheet erosion and gully erosion. Soil erosion का मतलब ये है कि सॉइल की जब टॉप सॉइल जो सबसे उसका टॉप लेयर होता है, ठीक है, वो विंड से या वाटर से यानी रेन वाटर से, ठीक है, पानी बरसने से जब बहुत तेज़ पानी बरसता है, ठीक है, तो अगर कोई ऐसी सॉइल हो जहाँ पे ऊपर घास ना हो, ग्रास ना हो, ठीक है, तो उसकी पकड़ जो है कि टाइटनेस बहुत लूज़ होती है. तो तेज़ पानी गिरने से और एक ही जगह पे लगातार पानी गिरने से क्या होता है कि ऊपरी जो टॉप सॉइल होती है वो बह करके कहीं और चली जाती है और इसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं. मतलब मिट्टी का कटना, सॉइल का कट करना या बह करके कहीं और चले जाना. सॉइल इरोजन टू टाइप्स का होता है. फर्स्ट आपका शीट इरोजन होता है. शीट इरोजन का मतलब होता है कि टॉप सॉइल जो है कि बहुत धीरे धीरे हट के जाता है. गली इरोजन एक दूसरा टाइप होता है, जो ये आप फिगर देख रहे हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, वो गली इरोजन का ही एक एग्जांपल है. गली इरोजन में सॉइल में जो है कि गली टाइप बन जाती है, गलियारा पैसेज टाइप बन जाता है और वो बहुत गहरा हो जाता है, तो उसको गली इरोजन कहते हैं. ठीक है, डीप ग्रूव्स उसमें बन जाते हैं, खाली जगहें बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, डीप बहुत बन जाती हैं, तो जिसे हम गली इरोजन कहते हैं. और सीट इरोजन में बस केवल थोड़ा थोड़ा इससे इरोज होता है और मिट्टी में गड्ढे नहीं होते हैं, मिट्टी में बहुत ज़्यादा गली नहीं बनती है. और आपकी जो सबसे लास्ट हेडिंग बचती है वो आपका है सॉइल कंजर्वेशन, यानी सॉइल को यानी मिट्टी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं.
तो मैंने आपको जब लैंड कंजर्वेशन बताया था तो मैंने आपको अफॉरेस्टेशन बताया, बहुत ज़्यादा पेड़ लगाना वो भी हो सकता है। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग को स्टॉप करना, यानी बहुत ज़्यादा एनिमल्स ज़मीन को न चरने पाएँ, घास न चरने पाएँ, वो होता है आपका। ठीक है, उसके बाद से मल्टीपल क्रॉप्स था कि मल्टीपल क्रॉप्स हम बोएंगे। ठीक है, ज़मीन को ऐसे खाली न छोड़ा जाए, उसमें कुछ न कुछ लगा दिया जाए, प्लांटेशन कर दिया जाए। ठीक है, फूल पौधे ही लगा दिए जाएँ, घास ही लगा दी जाए। तो ये जब रहते हैं तो छोटे मोटे पौधे या बड़े पौधों की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, सॉइल को जकड़ करके नहीं पकड़ करके रखती हैं। ग्रास ही हमने लगा दिया, छोटा मोटा फूल पौधा ही हमने लगा दिया, वो सॉइल को पकड़ करके रखता है। तो अगर बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है तो भी वो सॉइल को इरोज नहीं होने देता है। और उसके बाद जो टॉप मोस्ट आप जो उपाय कर सकते हैं वो आपका टेरेस फार्मिंग है। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, इसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं। टेरेस फार्मिंग का मतलब, टेरेस फार्मिंग उन प्लेसेस पे किया जाता है जहाँ पे एवरेज बहुत ज़्यादा रेन होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रेनी वाटर बहुत ज़्यादा आता है। जैसे असम वगैरह हो गया, मिज़ोरम हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया। ठीक है, ये माउंटेन एरियाज़ भी हैं, तो इस रीजन से भी यहाँ बहुत ज़्यादा रेन वाटर होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है। तो अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि इरोजन से बचने के लिए, ठीक है, सीढ़ीदार यानी स्टेयरकेस बना दिया जाता है, सीढ़ीदार बनाया जाता है खेत। तो ऊपर से पानी अगर गिरता भी है तो पानी लुढ़क कर के नीचे चला जाता है और बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन वहाँ पे नहीं होने पाता है। ठीक है, तो ये कुछ उपाय हैं जिनको यूज़ करके, जिनको अपना करके आप सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपका क्रॉप रोटेशन, यानी क्रॉप आप बदल बदल करके लगाएं। जैसे गेहूँ लगा दिया, फिर राइस लगा दिया, फिर उसमें वेजिटेबल बो दिया। ठीक है, ऐसा करके जब आप करेंगे तो उससे ह्यूमस भी बना रहता है, सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहती है। ठीक है, और सॉइल के जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं वो रिवाइव हो जाते हैं, फिर से उसमें मिनरल्स आ भी जाते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और कोरोना से बचे रहें, बहुत ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलें, लॉकडाउन का पालन करें, मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ बराबर करते रहें। ठीक है, आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं हैं तो फिर आपके माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं है, और हम जैसे टीचर्स के लिए भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो टीचर हैं। बिना स्टूडेंट्स के टीचर का कोई अस्तित्व, कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो सेफ रहें, सुरक्षित रहें, बचे रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और देखते रहें सेल्फ स्टडी हेल्प।